गोवा में एक हफ्ते के बाद बॉडी रेस्ट हो गई थी, बट रोड ट्रिप का दिल अभी भी भाग रहा था यार। महाबलेश्वर में एक रात रुका, व्यूज़ देखे और सोच लिया कि यार इंडिया में कितनी जगह हैं जो हम मिस कर देते हैं। फिर दमन गए और वहाँ जो मिला वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ट्रैवल सिर्फ सुंदर जगहों के बारे में नहीं होता है, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी पार्ट ऑफ द जर्नी होती है। गाइस अभी हम लोग हैं फटराडे बीच। वी आर बेसिकली स्टेइंग इन साउथ गोवा फॉर अ वीक। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं बेनोलिम बीच के पास। ट्रिनिटी बीच एक लोकल बीच है, नियर टू वेरी वेरी क्लोज टू बेनोलिम बीच। वहाँ पर रुके हैं और वहाँ से अगर हम वॉक करते हैं टुवर्ड्स द साउथ ऑन दिस कोस्ट लाइन तो आता है वर्का बीच, देन आता है फटराडे बीच। तो अभी हम लोग हैं फटराडे बीच पे। कल रात को हम लोग वॉक करते करते फ्रॉम बेनोलिम टू वर्का भी आए थे। वी हैड डिनर देयर एट वर्का एट अ वेरी साइलेंट रेस्टोरेंट। कुछ नहीं म्यूज़िक था, बस कैंडल लाइट टेबल्स थी। वहाँ पर खाना खाया और वापस देन वॉक करते हुए गए बैक टू बेनोलिम। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एंड इन साउथ गोवा दीज सम ऑफ दीज बीचेस लाइक फटराडे, वर्का, बेनोलिम। बेनोलिम इज़ मोर crowdy compared to Varka and Fatrade. If you visit Varka, it's less crowded, and then Fatrade is even lesser. So that's how the sequence is, and it depends on your preference on what you want to visit. और भी ज़्यादा पार्टी चाहिए तो go to North Goa, Baga, all of those places, Anjuna, those are party places. Then in South Goa, if you want to have some party, go to Benolim, lesser, Varka, even lesser, Fatrade, even more lesser, no party at all, nothing, just the beach vibe, just silent place to stay in, nothing else, just nature. Go to Galgi Baga. Galgi Baga is the southernmost beach in Goa. After that Karnataka starts. Galgi Baga में होम स्टेज है सिर्फ, नो रिजॉर्ट्स एज सच, बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे मोटे मिल जाएंगे अब। तो वहाँ पर इट्स ऑल साइलेंट, नथिंग एट ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स एंजॉय द गोवा वाइब। Tomorrow we are heading back. I have to go to Jaipur office, Q3 Technologies Jaipur office for a client visit. There's a face-to-face visit which I have to do. For 2 days I have to be there, Monday and Tuesday. Duty calls, I have to be there. Responsibility. So कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से. We'll have multiple stops and then we'll reach Jaipur for this client visit, and then we'll head back to Gurgaon to home. Guys, one more thing before I head back into the sea. If you want a luxury stay here for a night, 2 nights, 3 nights on this beach, Fatrade beach, I'll recommend Caravella Beach Resort. And then on the Varka beach, there's Zuri White Sands Resort. Both of them top quality. I like Zuri more. I've stayed there for 3 to 4 times in past, especially for birthdays, anniversaries and all. In Caravella we stayed 1 time, and right now because we're here for over a week, so we took kind of a resort which is not at the beach but around 500 meters from the beach. That's Karina Beach Resort near Benolim. So those are the recommendations for you if you want a luxury stay for a few nights, and if you want a longer stay you can look for budget resorts, budget hotels and beachside cottages. Those are good if you want a pool and a beach. That's all, not luxury facilities. Heading back into the sea now. So guys, we just saw the last sunset while we are in Goa during this trip, and sunsets here have been magical since a lot of years, since the first time I visited Goa, and then a lot of times that we have spent here. Goa is magical. Goa's sunsets are magical, and it's just pure love, pure nature, pure well-being when you're here, and that's what we feel. That's why we often long for being here. And since we're leaving tomorrow morning, I do feel a little bit sad because I'll miss this trip. It's coming to an end now. I'll miss Goa while we've been here. I'll definitely miss Goa and we'll come back. But life continues. So the life is travel, right? We are all traveling from one place to another at any point of time.
we're just traveling from one place to another. So we'll continue to do that, and we'll continue to live while you guys are also living. Tomorrow morning we'll leave, and I'll show you what are the stops in between, and I'll try to cover this whole journey from here to Jaipur. Go to Jaipur in maybe 3 days. I'll try to do that, and then we'll continue one day again 6 hours or so from Jaipur to Manesar, our home. Lovely. निकल गए हम लोग गोवा से आफ्टर स्पेंडिंग वेरी पीसफुल टाइम है, वेरी प्रेजेंट टाइम है। निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आज का प्लान है कि जितना भी पॉसिबल होता है वहाँ तक जाएंगे। द रूट इज़ थ्रू नियर बाय महाबलेश्वर, देन वापी, अहमदाबाद, सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर एंड देन जयपुर, अजमेर, जयपुर। तो ये रूट है। अभी लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। आज वही रुकेंगे जहाँ पहुँचेंगे, एंड कंटिन्यू टुमारो एंड ट्राई टू रीच जयपुर देन। रत्नागिरी क्रॉस हो चुका है, अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया यार, क्योंकि थोड़ा रोड इतनी अच्छी नहीं है। आपको दिखाया मैंने, कहीं कहीं पे अच्छी है, कहीं पे नहीं है। एज अ सेड, रोड आपने देखा, ख़राब पैच भी देखा, अच्छा पैचेस भी है। जैसे हाईवे, लेकिन काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑन दिस रूट जो हमने लिया है। देखते हैं कहाँ तक है। हमें तो काफ़ी लंबा जाना है। लेट्स सी, ताकि व्यू अच्छा है फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट। फर्स्ट स्टॉप वॉज महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से थोड़ा पहले, 1 घंटा पहले, अराउंड 25 किलोमीटर्स बिफोर महाबलेश्वर, क्योंकि यहाँ पर होटल्स काफ़ी है तो हम लोग यहाँ पर रुक गए। अच्छा व्यू भी था, अच्छे पहाड़, यू कैन सी ऑल द ग्रीनरी अराउंड, सो इट्स नाइस टू स्पेंड द नाइट इन क्लीन एयर। और अब आगे की रास्ता शुरू करते हैं। तो आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टॉप्स। इट विल बी क्विक अबाउट जस्ट शोइंग द स्टॉप्स, एंड देन विल just head towards our home back. Guys, this is the way towards Pratapgarh Fort. प्रतापगढ़ फोर्ट के पास में हम लोग रुके थे, और अभी यहाँ पर फोर्ट के ऊपर में व्यू भी है, प्लस पीछे का व्यू आई जस्ट शो यू। बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे बंदर काफ़ी है। आई थिंक वी शुड गो एंड कंटिन्यू आवर जर्नी नाउ। गाइस, अभी निकल रहे हैं हम लोग लोनावला के पास से। खोपोली आएगा थोड़ी देर में, उसके बाद लोनावला आएगा, और फिर हम वहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आज दमन में रुकने का प्लान बन रहा है, तो वापी के पास गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे दमन एंड यूनियन टेरिटरी, वहाँ जाएंगे। दमन में बीच है वहाँ पे रुकेंगे, एंड देन टुमारो विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स जयपुर। एक और दिन ख़त्म हुआ है, और अभी जैसा कि आपको पता है ना, महाबलेश्वर से चलना शुरू किया था हमने। महाबलेश्वर थोड़ा पहले, आई टोल्ड यू द प्लेस, और वहाँ से वी थॉट कि हम दमन में रुकते हैं। दमन, यू मस्ट हर्ड अबाउट द यूनियन टेरिटरी। तो दमन पहुँचे थे। इट वॉज नॉट अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्राइव, 7 घंटे के आसपास का टाइम था। तो हम लोग पहुँच गए थे शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे। सनसेट हो ही रहा था तब। सनसेट देखा वहाँ पे दमन बीच पे, लेकिन यार सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा तो नहीं लगा मुझे वो बीच। गोवा से आए, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, मीट नहीं हो पाई। ठीक है, दमन में देयर आर बार्स, देयर आर वाइन शॉप्स। गुजरात के मोस्टली लोग वहीं पे इकट्ठे होते हैं ओवर द वीकेंड टू ड्रिंक एंड टू पार्टी। इट्स अ यूनियन टेरिटरी, दैट्स ऑल्सो अ प्लस अबाउट द टैक्सेस एंड ऑल। तो यही सब चल रहा था। दमन में गए तो बहुत मज़ा नहीं आया बीच देख के, एंड आपको पता चल गया होगा अभी तक व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर। वी लव नेचर, वी लव क्लीनलीनेस, दैट्स द प्रायोरिटी। नेचर हो, साफ़ सुथरा हो, लोगों में सिविक सेंस हो, जो थोड़ा कम लगी ऑनेस्टली स्पीकिंग। इंडिया में मोस्टली जगहों पर ऐसा है, तो दमन में भी वैसा ही था कल्चर, तो वो कम लगा। और काफ़ी गंदा था बीच, ब्लैक सैंड वाला बीच है, विच इज़ गुड। इट्स अ नेचुरल थिंग टू हैपन। ब्लैक सैंड बीचेज़ आर गुड, हमने पहले भी देखे, इंडोनेशिया में देखे, बट उसको मेंटेन करना होता है। उसमें
आपके सिगरेट बट्स पड़े रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स पड़ी रहेंगी, रैपर्स पड़े रहेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और वो वैसा ही था, उतना अच्छा नहीं लगा। तो दमन में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, सनसेट देखा। देन वी केम टू सूरत। सूरत के बाहर ऑन द हाईवे इटसेल्फ वी गॉट अ गुड होटल। यहाँ पर हम लोग रुके हैं। इट इज़ गुड क्लीनलीनेस, देयर इज़ गुड बेड। तो आज यहीं रुकेंगे और फिर यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे टू उदयपुर। कल का प्लान है उदयपुर एंड देन टू जयपुर। तो अभी यहाँ पर सूरत में बहुत घूमने का प्लान नहीं है। नाउ वी आर जस्ट रनिंग बैक होम। आई हैव टू अटेंड माई ऑफिस, आई हैव टू go back home. There are things coming up.